Hello students, chapter number 1 electric charge and electric field. In this chapter we are already discussed in the previous lecture applications of Gauss law and that theorem. So in the previous lecture we solved two applications of Gauss law. Right now in this lecture we learn a new concept regarding this Gauss law. So third application, what is the title of this application? That is electric field due to uniformly charged spherical cell. So आपको ये वाला वर्ड पहले दिमाग में स्टोर करना है. For which we have to calculate the electric field, whether the line charge is given, infinitely long charge wire, or infinitely plain sheet, or spherical cell. So in this lecture we have to calculate the electric field for a given uniformly charged thin spherical cell. Okay, so look at the diagram. यहाँ पे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देख सकते हो जो कंटिन्यूअस स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है उसकी रेडियस आर है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट चार्ज इज क्यू. सो इस वाली कैपिटल आर रेडियस है उसको हम बोल सकते हैं थीन स्फेरिकल सेल. क्या बोल सकते हैं? थीन स्फेरिकल सेल. सो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एट आउटसाइड पॉइंट, से दिस वन इज पी पॉइंट, एंड इनसाइड. सो थ्री टाइप्स के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. फॉर आउटसाइड पॉइंट, for inside and surface on the given spherical cell. Okay, so we are calculating one by one. So for that we already learned the Gauss law. We have to assume one spherical, because this shape is spherical, we have to assume this spherical Gaussian surface. Okay, which we mention as a dotted line. So इसका नाम आप full name लिखोगे spherical Gaussian surface. So if we select a point P which is outside the given spherical cell, so आप देख सकते हो small r is the radius of spherical Gaussian surface, which is small r is greater than capital R. So this point P which is outside point, outside the given spherical cell. Okay, तो वहां पे हमने एक small element लिया है. हमको पता है कि चार्ज यदि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी? रेडियली आउटवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई. एंड व्हाट इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट? अगेन परपेंडिकुलर टू दिस वन. सो दिस इज स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए वेक्टर. आप देख सकते हो कि ई एंड डीए बोथ आर पैरेलल. सो व्हाट इज द एंगल ओवर हियर? थीटा इज 0. Theta is 0. Now we are solving the theory. Now we derive the theory. So what is from the figure? Charge Q. आप देख सकते हो charge Q is distributed on the surface of given spherical cell having radius capital R. तो आपको ये दिमाग में फिक्स रखना है. जो भी आप एजम्पशन लो वो पूरे तीन केस के लिए एजम्पशन सेम रखना है. कैपिटल R is the radius of given spherical cell. Small r for this case is the outside point P having radius small r. Okay, now we are doing the calculation to calculate electric field at point P. So what is this? Is my spherical Gaussian surface. What is outside point? That is small r is greater than capital R. आप देख सकते हो फिगर ए में मैंने शो किया है ये वाला डायग्राम. Now what is Gauss theorem? What is Gauss law? Surface integral E dot dA equal to Q inside upon epsilon naught. यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? E dA cos theta equal to Q inside. सो आप देख सकते हो फ्रॉम द डायग्राम ये वाला जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने लिया, जो डॉटेड लाइन से मैंने बताया उसके इनसाइड कितना चार्ज है. तो आप सिंपली बोल सकते हो कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज. सो व्हाट इज माय Q इनसाइड? दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और इसको हमने सिंप्लीफाई किया ई डॉट डी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट से. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप देख सकते हो कि ये पी पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे कोई पॉइंट दूसरा लेता, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो कि स्मॉलर डिस्टेंस पे ही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? कांस्टेंट होगी. सो टेक आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इंटीग्रल. सो व्हाट इज माय वैल्यू? नाउ
cos 0 is what? 1. So what is cos 0? 1, because angle between E and DA is 0. So E हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं और इंटीग्रल DA एंड cos 0 क्या हुआ? 1. cos 0 क्या हुआ? 1. सो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ cos 0 के लिए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इस वाले एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल डीए, सरफेस इंटीग्रल डीए। तो आप देख सकते हो कि हमने कौन सी गॉसियन सरफेस सिलेक्ट की है, ये डॉटेड वाली, उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। सो व्हाट इज द एरिया? सो आपको पता है 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो फर्दर भी सिंप्लीफाई करते हैं ई into 4 pi small r square. You focus over here. Why we are mentioning small r? Because this radius is smaller. Okay, we are focusing on this dotted line. This हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट की रेडियस सेंटर ओ से कितनी है? आर, स्मॉल आर। सो यहाँ पे स्मॉल आर लिखना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो ई इज इक्वल टू क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर आया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया? ई एट पी पॉइंट। तो आप डायरेक्टली सभी जगह लिख सकते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन से पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पी पॉइंट विच इज ओवर हियर मीन्स आउटसाइड पॉइंट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग मिली। आप देख सकते हो कि ऐसा फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका जो सारा चार्ज है वो सेंटर पे होगा, ऐसा बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ईपी हमको ऐसा फॉर्मूला मिला के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपको ये रिमेंबर रखना है ईपी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। EP is proportional to 1 by r square। यदि P नहीं लिखना चाहते तो आउटसाइड लिखो, वो भी अच्छा होगा आपके लिए। नाउ सेकेंड, ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन स्फेरिकल सेल, आप देख सकते हो यदि मैं पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट P के अलावा x पॉइंट लेता हूँ तो वो यहाँ पे x पॉइंट सपोज, तो उसके लिए रेडियस कितनी होगी? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ओके, नाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन? तो ऐसा ही कैलकुलेशन आएगा डिट्टो, बिकॉज आप देख सकते हो व्हाट इज चार्ज? डिस्चार्ज दैट इज क्यू, सेम। सो आप ऐसा ही डेरिवेशन कर सकते हो, और स्मॉल आर की जगह पे हमको क्या प्लेस करना है? कैपिटल आर। तो हम पहले अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, और उसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ई इंटू इंटीग्रल डी कॉस 0 होगा, वो आपको पता है क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख सकते हैं? ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि के और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वाला हमारा आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द गिवन स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि दोनों में रेडियस ही चेंज है। ओके, नाउ इनसाइड पॉइंट, थर्ड केस इनसाइड पॉइंट। सो इनसाइड का मीनिंग अब आपको पता चल गया होगा कि जो ओरिजिनल हमारा गॉसियन स्फेरिकल सेल था जो हमने प्रीवियस फिगर में ड्रॉ किया है, तो वही हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया है। आप देख सकते हो ये डॉटेड वाला सर्कल की स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, और उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। तो वही स्फेरिकल सेल हमने सेकेंड टाइम ड्रॉ किया। अब मेरा पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट में सिलेक्ट करने वाला हूँ वो कहाँ पे होना चाहिए? ये वाई पॉइंट यदि हम लेते हैं तो वाई पॉइंट स्मॉलर रेडियस का है, वो इसके इनसाइड है। दैट्स वाई हमने थर्ड केस लिया इनसाइड पॉइंट। दैट मीन्स स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया, वो कंटिन्यूअस स्फीयर से मैंने ड्रॉ किया है, और ओरिजिनल है वो डॉटेड से ड्रॉ किया है। तो आप गौर कर सकते हो ये डायग्राम, ये बी डायग्राम है। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम। सो उसका फॉर्मूला ये है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ई डी ए कॉस थीटा, ई इज कॉन्स्टेंट सो टेक आउटसाइड,
what is q inside over here? Charge enclosed by the given spherical Gaussian surface. So charge distributed outside है और इसके वजह से ये रेडियस, ये SGS जो मैंने बताया है, शो किया है, उसकी वजह से चार्ज कोई भी एनक्लोज नहीं हो रहा, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0। सो ये राइट साइड 0 आ गया, तो इंटीग्रेशन भी क्या, ये वाला टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट क्या हो गई? 0। तो आपको ये याद रखना है, रिजल्ट आपको माइंड में स्टोर करने हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ MCQ। Now graph is important for JEE NEET or good set examination for the same theory. So what is on why we have to draw such kind of graph? तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट है सेंटर, दैट मीन्स O। तो यहाँ पे आप ये सेंटर ये ओरिजिनेट कर सकते हो, ये वाला सेंटर। ओके, नाउ आपको पता है इफ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, व्हाट इज माय वैल्यू? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, व्हाट इज माय वैल्यू? तो आप देख सकते हो KQ/R²। सो ये वाली मैक्सिमम KQ/R²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो E क्या है? KQ/R²। ओके, तो ये वाला पॉइंट जब हम सरफेस R लेते हैं तो मिलेगा। नाउ R के ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है? R विच इज हायर और लोअर। तो आप इनसाइड पॉइंट में देख सकते हो R इज लेस देन R, और ये वाला है R इज ग्रेटर देन R। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इज ग्रेटर देन R। तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, कितनी होगी? KQ/R² जितनी, और सरफेस से आउटसाइड जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला E इक्वल टू KQ/R²। तो आप देख सकते हो ये आउटसाइड पॉइंट है, ये सरफेस वाला, और ये इनसाइड पॉइंट। तो ये ग्राफ JEE और नीट में प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन में आया है, तो आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।